تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپاہی کی زندگی اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا عادی ہو۔ یہ الفاظ اپریل 1175 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ اصلح کے ایک امیر صفا الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں کو صلیبیوں نے در پردہ مدد اور زر و جواہرات کا لالچ دیا۔ ان کی چال صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی تھی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے، انہیں حملہ کیا۔ اصلح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال متا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے ذاتی خیمے گاہ سے رنگ برنگی پرندے، حسین اور جوان ناچنے والی لڑکیاں، گانے والی لڑکیاں، ساز اور سامان اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو، ناچنے گانے والیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، مگر یہ نہ سوچو کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا کبھی بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کر دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملہ کرا چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام کے دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اتارنے کی شرح اور مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو۔ سپاہ گیری ان آدمیوں کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کے دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، آمین۔ صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی لیکھک لین پول لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس میں اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہیوں اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جنرل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلمان، رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمت اس کی فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن صبا کے پر اثر فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر دوبارہ قاتلانہ حملہ کر چکے تھے، لیکن خدائے جل جلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ تب ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائی اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینہ، حسد و جلن سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی لمبا ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوار بن گئی، اسی طرح حسن بن صبا نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ
अपने आप को मुसलमान ही कहता रहा और ऐसा ग्रोह बना लिया जो तिलिस्माती तरीकों से लोगों को अपने पैरोकार बनाता था। इस मकसद के लिए इस ग्रोह ने निहायत हसीन लड़कियां, नशावार जड़ी बूटियां और चरब ज़बानी जैसी तरीके इख्तियार किए, बहिश्त बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए कातिलों का एक गिरोह तैयार किया। कातिल के तरीके खुफिया और पुर असर होते थे। इस फिरके के अफराद इस कदर चालाक, ज़हन और निडर थे कि भेष और ज़बान बदलकर बड़े बड़े जनरलों के बॉडीगार्ड तक बन गए थे, और जब कोई पुरअसर तरीके से कत्ल हो जाता था तो कातिलों का सुराग ही नहीं मिलता था। कुछ बाद ये फिरका कातिलों के गुरोह के नाम से मशहूर हो गया। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे, जहर भी इस्तेमाल करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फिरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को न हसीन लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था और न शराब से। वो इन दोनों से नफरत करते थे। उन्हें कत्ल करने का यही एक तरीका था कि उस पर कातिलाना हमला किया जाए। उनके मुहाफिजों की मौजूदगी में उस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये तवक्को थी कि उसका चचा जाद भाई असलह और अमीन सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक और ज़र्रे ज़मीन कोशिश की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस फतेह का जश्न मनाने के बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में ले लिया। इनमें गाजा का मशहूर शहर कस्बा भी था। इसी कस्बे के नज़दीक नहवा में एक रोज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर असदी के खेमे में दोपहर के वक्त गुनगी के आलम में सुस्ता रहे थे। उसने अपनी पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदान जंग में उसके सर को सहारे के तौर पर सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती थी। खेमे के बाहर उसके मुहाफिजों का दस्ता चौकस था। बॉडीगार्ड के इस दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहां से चला गया। एक मुहाफिज ने सलाहुद्दीन के खेमे के गिरे हुए पर्दे में से झांका। इस्लाम के अजमत के पासबान की आंखें बंद थी। वो पीठ के बल लेटा हुआ था। उस मुहाफिज ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उनमें से 3-4 बॉडीगार्ड्स ने उसकी तरफ देखा। मुहाफिज ने अपनी आंखें बंद करके खोली। 3-4 मुहाफिज उठे और दूसरों को बातों में लगा लिया। मुहाफिज खेमे में चला गया, कमरबंद से खंजर निकाला, दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी पर जस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। ऐन उसी वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने करवट बदल ली। ये नहीं बताया जा सकता कि मुहाफिज खंजर कहाँ मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पगड़ी के बलाई में उतर गया और सिर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी सिर से उतर गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बिजली की तेजी से उठे। उन्हें यह समझने में देर न लगी कि ये सब क्या है। उन पर इससे पहले ऐसे 2 हमले हो चुके थे। उन्होंने इस पर भी हैरत का इजहार न किया कि हमलावर उनके अपने बॉडीगार्ड्स के लिबास में था, जिसे उन्होंने खुद अपनी हिफाजत के लिए चुना था। उन्होंने एक सांस जितना अरसा भी ज़ाया न किया। हमलावर उनकी पगड़ी से खंजर खींच रहा था। अय्यूबी सर से नंगे थे। उन्होंने हमलावर की पगड़ी पर पूरी ताकत से घूंसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दी। हमलावर का जबड़ा टूट गया था। वो पीछे को गिरा और उसके मुंह से हैबतनाक आवाज़ निकली। उसका खंजर सलाहुद्दीन की पगड़ी में रह गया था। अय्यूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 मुहाफिज दौड़ते हुए अंदर आए। उनके हाथों में तलवार थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें कहा कि इसे जिंदा पकड़ लो, मगर ये दोनों मुहाफिज सलाहुद्दीन अय्यूबी पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये देखकर हैरान रह गए कि उनके बॉडीगार्ड्स 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि इन में उनका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। वो मुआरके में शरीक न हो सके। कुछ देर बाद जब बॉडीगार्ड्स में कुछ मारे गए, कुछ भाग गए और बाद जख्मी होकर बेहाल हो गए, तो मालूम हुआ कि इस दस्ते में जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिफाजत पर मामूर 7 मुहाफिज फिदाई थे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फिदाई
खेमे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई, चुनांचे बाकी भी अंदर चले गए, असल मुहाफिज भी अंदर आ गए। वो सूरत हाल समझ गए थे और सलाउद्दीन अयूबी बच गए। उन्होंने अपने हमलावरों की शह रख पर तलवार की नोक रख कर पूछा कि वो कौन है और उन्हें किसने भेजा। सच बोलने के बदले में सलाउद्दीन अयूबी ने उसकी जान बख्श देने का वादा किया। उसने बताया कि वो फिदाई है और उसे केमिस्टकिन ने इस काम के लिए भेजा था। केमिस्टकिन असलहा के एक किले का गवर्नर था। असल कहानी सुनाने से पहले ये ज़रूरी मालूम होता है कि इन वाक़ियात से पहले के दौर को देखा जाए। सलाउद्दीन अयूबी के नाम, उनकी अज़मत और तारीख़ इस्लाम में उनके मुकाम और कारनामों से कौन वाकिफ़ नहीं। मिल्लत इस्लामिया तो उसे भूल ही नहीं सकती, मसीही दुनिया भी उसे याद रखेगी। लिहाजा ये ज़रूरी मालूम नहीं होता कि सलाउद्दीन अयूबी का शजरा नसब तफसील से बयान किया जाए। हम जो कहानी सुनाने लगे हैं वो इस नौइयत की है जिसके लिए तारीख़ का दामन तंग होता है। ये तफसीलात वाक़या निगारों और कलमकारों की रिकॉर्ड की हुई होती है, कुछ सीना ब सीना अगली नस्लों तक पहुँचती है। तारीख़ के दामन में सलाउद्दीन अयूबी के सिर्फ कारनामे महफूज किए गए हैं। उन साजिशों का जिक्र बहुत कम आया है जो अपनों ने उनके खिलाफ की और उसकी बढ़ती हुई शोहरत और अजमत को दागदार करने के लिए उन्हें ऐसी लड़कियों के जाल में फांसने की बार बार कोशिश की गई जिनके हुस्न में तिलिस्माती असर था। तारीख़ इस्लाम का ये हकीकी ड्रामा 23 मार्च 1166 के रोज़ से शुरू होता है जब सलाउद्दीन अयूबी को मिस्र का वाइसराय और फौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उसे इतना बड़ा रुतबा एक तो इसलिए दिया गया कि वो हुक्मरां खानदान का निहाल था और दूसरा इसलिए कि कम उम्र में ही वो फने हरब व जरब के माहिर हो गए थे। सिपागिरी विरासत ने पाई थी। उनके जहन में हुक्मरानी के माने बादशाहत ही नहीं, इस्लाम की पासबानी और कौम की अजमत और फलाह व बहबूद थी। उनका जब शऊर बेदार हुआ तो पहली ख्वाहिश ये महसूस की कि मुसलमान हुक्मरान न सिर्फ ये कि इत्तेहाद नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद से भी गुरेज करते थे। वो अय्याश हो गए थे। शराब और औरत ने जहाँ उनकी ज़िंदगी रंगीन बना रखी थी वहाँ आलम इस्लाम और खुदा के इस अजीम मजहब का मुस्तकबिल तारीख हो गया था। उन अमीरों, उनके वजीरों और मुशीरों के हरम गैर मुस्लिम लड़कियों से भरे हुए थे। ज़्यादातर लड़कियां यहूदी और ईसाई थी जिन्हें खास तरबियत देकर उन हरमों में दाखिल किया गया था। गैर मामूली हुस्न और सरबराहों के किरदार और कौमी जज्बात को दिमाग की तरह खा रही थी। इसका नतीजा ये था कि सलेबी जिनमें फिरंगी खास तौर पर काबिल जिक्र है मुसलमानों की सल्तनतों के टुकड़े हड़प करते चले जा रहे थे और बाद मुस्लिम हुक्मरान शाह फरेंग को सालाना टैक्स या जजिया अदा कर रहे थे जिसकी हैसियत गुंडा टैक्स सी थी। सलेबी अपनी जंगी कुव्वत के रौब से और छोटे मोटे हमलों से हुक्मरानों को डराते रहते थे। कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेते, तादन और टैक्स वसूल करते थे। उनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस्लाम को हड़प कर लिया जाए। मुसलमान अपनी जनता का खून चूस कर टैक्स देते थे। उनका मकसद ये था कि उन्हें ऐशो इशरत में परेशान न किया जाए। फिरका परस्ती के बीज भी बो दिए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फिरका हसन बिन सबा का था जो सलाउद्दीन अयूबी की जवानी से एक सदी पहले मरीज वजूद में आया था। ये मफाद परस्तों का फिरका था, बेहद खतरनाक और पुरअसर। ये लोग अपने आप को फिदाई कहलाते थे जो बाद में हमशीशन के नाम से मशहूर हुए क्योंकि वो हशीश नाम के एक नशावार शय से दूसरों को अपने जाल में फांसते थे। सलाउद्दीन अयूबी ने मदरसा निज़ामुल मुल्क में तालीम हासिल की। याद रहे कि निज़ामुल मुल्क दुनिया इस्लाम की एक सल्तनत के वजीर थे। ये मदरसा इन्होंने कायम किया था जिसमें इस्लामी तालीम दी जाती और बच्चों को इस्लामी नजरियात और तारीख से बहरावर किया जाता था। एक मुआरखीन इब्ने अल अथर के मुताबिक निज़ामुल मुल्क हसन बिन सबा के फिदाई का पहला शिकार हुआ क्योंकि वो रोमियों की तोसीद पसंदी की राह में चट्टान बना हुआ था। रोमियों ने 1061 ईस्वी में इन्हें फिदाई के हाथों कत्ल करा दिया। इनका मदरसा कायम रहा। सलाउद्दीन अयूबी ने वहीं से तालीम हासिल की। इसी उम्र में उसने सिपाहीगिरी की तरबियत अपने बुजुर्गों से ली। नूरुद्दीन जंगी ने उसे जंगी चालें सिखाई, मुल्क के इंतजामात के सबक दिए और डिप्लोमेसी में महारत दी।
इस तालीम और तरबियत ने उसके अंदर वो जज्बा पैदा किया जिसने आगे चलकर सलीबियों के लिए बिजली बना दिया। कम उम्र में ही उसने वो ज़हनियत हासिल कर ली थी जो एक सालार आज़म के लिए ज़रूरी होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़न हरब व जरब में जासूसी, इंटेलिजेंस, कमांडरों और गुरिल्ला ऑपरेशन को खुसूसी अहमियत दी। उसने देख लिया कि सलीबी जासूसों के मैदान में आगे निकल गए हैं और वो मुसलमानों के नज़रियात पर निहायत कारगर हमले कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नज़रियात के मुहाज पर लड़ना चाहते थे जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती। इस कहानी में आगे चलकर आप देखेंगे कि उनकी तलवार का वार तो गहरा होता ही था, उनकी मोहब्बत का वार उससे कहीं ज़्यादा मार करता था। इसके लिए तहम्मुल और बुदरबारी की ज़रूरत होती है जो उन्होंने कम उम्र में ही अपने आप में पैदा कर ली थी। उससे जब मिस्र का वाइसराय और कमांडर इन चीफ बनाकर मिस्र भेजा गया तो उन अफसरों ने हंगामा बर्पा कर दिया। इस ओहदे की आस लगाए बैठे थे। उनकी निगाह में अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी तिफले मकतब था, मगर उस तिफले मकतब ने जब उनका सामना किया, उसी बातों सुनी तो उनका एहतजाज सर्द पड़ गया। मोरिक लैंडपोल के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त साबित हुआ। उसने तफरी, अय्याशी और आराम को अपने लिए और अपनी फौज के लिए हराम करार दिया। उन्होंने अपनी दिमागी और जिस्मानी कुव्वत को सिर्फ इस मकसद पे मकरूज कर दिया कि अज़मत इस्लामिया का मुस्तहकम करना है और सलीबियों को इस सर जमीन से निकालना है। फ़लस्तीन पर वो हर कीमत पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने यही मकसद अपनी फौज को दिए। मिस्र का वाइसराय बनकर उन्होंने कहा, खुदा ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है, उसकी ज़ाते बरी मुझे फ़लस्तीन भी ज़रूर अता करेगी। मगर मिस्र पहुंचने पर उस पर इंकशाफ हुआ कि उसका मुकाबला सिर्फ सलीबियों से नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाइयों ने उनकी राह में बड़े बड़े हसीन जाल बिछा रखे हैं जो सलीबियों के अज़ाइम और जंगी कुव्वत से ज़्यादा खतरनाक है। मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस्तकबाल जिन दौलतमंद लोगों ने किया, उनमें से नाजी का एक सालार भी खुसूसी अहमियत का हामिल था। अय्यूबी ने सबको सर से पांव तक देखा। उनके होठों पर मुस्कुराहट और ज़बान पर प्यार व मोहब्बत की चाशनी थी। बास पुराने अफसरों ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जो तंग थी और उसमें से तुम शुक्र था। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिर्फ नाम से वाकिफ था या उसके मुतल्लिक ये जानते थे कि वो हुक्मरान खानदान का फर्द है और अपने चचा का जान नशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन जंगी के साथ उसका क्या रिश्ता है, उनके खानदान की बदौलत थी या इस वजह से इन्हें अहमियत दी कि वो मिस्र का फौजी वाइसराय और कमांडर इन चीफ बनाकर आया था। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में